हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है क्लास 12th का चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर्स होते हैं जिससे वी कैन प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी, तो दे आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल बैरियर्स, IUDs, that is intrauterine devices, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods। तो नेचुरल मेथड क्या होता है जिसमें कुछ भी आर्टिफिशियल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। It works on the principle of avoiding chances of fertilization, that is ovum and sperms meeting. तो उसके लिए we can follow periodic abstinence. इसमें the couples avoid or abstain from coitus or sexual intercourse from day 10 to 17 of the menstrual cycle. Day 10 to 17 क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि average length is 28, तो वो वेरी करता है एवरेज लेंथ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो उस रेंज में ही ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है, तो उस टाइम पे वी शुड abstain from coitus. So as chances of fertilization are very high during this period, it is called the fertile period. Therefore, abstaining from coitus during this period, conception could be provided or prevented. और withdrawal or coitus interruptus एक another method है in which the male partner withdraws his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. And another method is lactational amenorrhea, that is absence of menstruation. Amenorrhea मतलब absence of menstruation. And lactational क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि when the mother is lactating, तब she is not उस पीरियड में menstruation नहीं होता है, amenorrhea का पीरियड होता है। So this is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition or childbirth. Therefore, as long as the mother breastfeeds, the child fully chances of conception are almost nil. But this method is not very effective and it is reported to be effective only up to a maximum period of 6 months following parturition. तो हमारे 3 मेथड्स हो गए उसमें, एक लैक्टेशनल एमोनोरिया, विड्रॉल एंड पीरियोडिक एब्स्टिनेंस नेचुरल मेथड्स में। बैरियर मेथड्स में क्या क्या है? इसमें ovum and sperms are prevented from physically meeting with the help of barriers. तो ये दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं इन मेल्स एंड फीमेल्स। सो पहला है हमारे कॉन्डम्स और बैरियर्स, जो कि बने होते हैं रबर लेटेक्स शीट से, that are used to cover the penis in the male or vagina or cervix in the female just before coitus, so that अगर जो ejaculated semen होगा that would not be able to enter the female reproductive tract. एक और कॉन्डम है फॉर मेल के लिए, दैट इज़ नेरोथ. इट इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल. एंड कॉन्डम्स के एडिशनल बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर पूछे कोई, तो prevents the person from contracting the sexually transmitted infections and AIDS. And both male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby gives privacy to the user. So next आते हैं हमारे diaphragm, cervical caps and vaults are also barriers made up of rubber. ये होते हैं for the female reproductive tract to cover the cervix during coitus. This prevents conception by blocking entry of sperms through the cervix. तो ये यूजेबल होते हैं। कुछ spermicidal creams, jellies and foams होते हैं. They are usually used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. तो दोनों चीज़ें हम simultaneously use करते हैं to increase the efficacy of these barriers. फिर हमारे आते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। तो इसको इंसर्ट करने के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। तो कहाँ इंसर्ट होता है? इन द यूट्रस थ्रू दी वजाइना। सो इसके एग्जांपल्स क्या है? लिपीज लूप जो है कि नॉन मेडिकेटेड IUD है, कॉपर रिलीजिंग IUDs, दैट इज कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, एंड हार्मोन रिलीजिंग IUDs, प्रोजेस्टेरोसर्ट एंड LNG-20। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। कॉपर रिलीजिंग IUDs जो होते हैं वो कॉपर रिलीज करते हैं, विच प्रिवेंट्स द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग द ओवम। तो मतलब स्पर्म के एफिकेसी को कम कर देता है। तो ये एग्जाम्पल्स एंड नाम आपको याद रखने हैं। तो IUDs क्या करते हैं? दे इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस एंड द कॉपर एंड सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म।
तो ये फंक्शन क्या होगा कॉपर आयंस के? दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ द स्पर्म। जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होते हैं, दे मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स. So these are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy, and it's the most widely accepted method of contraception. तो ये IUDs females के लिए होते हैं which they can use. फिर होता है हमारे oral pill contraceptives जो होते हैं. तो इसमें क्या होता है, small doses of either progestogens और progesterone estrogen का combination pills के form में होता है, used by the females. So they are popularly known as pills, and they have to be taken daily for a period of 21 days, starting from the first 5 days of the within the first 5 days of the menstrual cycle. So ये after a gap of 7 days during which menstruation occurs, it has to be repeated in the same pattern till the female desires to prevent conception. तो इनका क्या function होता है? They inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of the cervical mucus to prevent entry of sperm. सहेली इज़ द न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स. तो सहेली का क्या एडवांटेज है? इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन. तो स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो ये एक नया क्या है सहेली में? इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन. इस पिल को वंस अ वीक ही लेना होता है विथ वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू. तो इसका क्या फंक्शन होता है? जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे यूट्रस में उसको ब्लॉक करता है, preventing a fertilized egg from implanting in the uterine lining. तो नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्प्लांट्स. वो भी होते हैं प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन में एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन. तो उनका भी जो मोड ऑफ एक्शन है इट इज सिमिलर टू दी पिल्स. तो ये हमें लेना पड़ता है विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटिस. तो ये बहुत इफेक्टिव होता है इफ़ टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ द क्वाइटिस. एंड इसका क्या एडवांटेज है? इट कुड ऑल्सो अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और कैजुअल प्रोटेक्टेड इंटरकोर्स. नेक्स्ट आते हैं हमारे सर्जिकल मेथड्स. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर मेल फीमेल दोनों के लिए है. ये एक टर्मिनल मेथड है टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज. तो ये सर्जिकल इंटरवेंशंस क्या होते हैं? दे ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन. तो फर्स्ट जो होता है वैसेक्टॉमी जो हमारे मेल्स में होता है, एंड नेक्स्ट इज ट्यूबेक्टॉमी जो हमारे फीमेल्स में होता है. तो वैसेक्टॉमी मेल्स में होता है, आप ये कैसे याद रखेंगे? मेल्स में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट एक होता है वैस डिफरेंस, तो उससे आप याद रख सकते हैं. तो वैसेक्टॉमी मेल्स के लिए है, एंड फिलिपियन ट्यूब जो होता है वो फीमेल्स में होता है, सो उससे आता है हमारा ट्यूबेक्टॉमी. तो वैसेक्टॉमी में क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड and tied up through a small incision on the scrotum. और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसेशन इन द abdomen और थ्रू vagina. सो ये काफ़ी हाईली इफेक्टिव होते हैं ये मेथड्स, सर्जिकल मेथड. नेक्स्ट आता है हमारा जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. दैट इज इंटेंशनल होता है. जो if we conceive and we don't want that pregnancy, तो we can terminate that pregnancy, और induced abortion भी बोलते हैं इसमें. तो around 45-50 million NTPs are performed in a year all over the world, and which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. सो ये लीगलाइज है या एक्सेप्टेड है या नहीं, दैट इज़ बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज़, क्योंकि इससे कुछ इमोशनल हमारे एथिकल रिलीजियस सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लीगलाइज किया था इन 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज. तो जैसे कि आप सबको पता है हमारे इंडिया में फीमेल फीटिसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है. तो such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticide, which are reported to be high in India. So ये इसके MTP से रिलेटेड कुछ बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं ड्यू टू फीमेल feticide in India. तो ये MTPs are considered relatively safe during the first trimester up to 12 weeks of pregnancy. Second trimester में it becomes much riskier. एंड एक ट्रेंड ऑब्जर्व होता है कि MTP जो है वो इलीगली जो डॉक्टर्स होते हैं अनक्वालिफाइड क्वैक्स जिसको हम बोलते हैं,
वो परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल सेफ, एंड इसमें मदर की भी जान जा सकती है। सो इट्स अ डेंजरस ट्रेंड। एंड एक एमनियोसेंटेसिस होता है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये दोनों रिलेटेड है एमटीपी से। तो ये बिल्कुल इलीगल है टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड इन इंडिया। तो हमारे कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड और उसको हम बोलते हैं वेनेरियल डिजीजेस बोलते हैं, वीडी, और आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो हमारे कौन कौन से होते हैं? गोनोरिया जो बैक्टीरिया से कॉज होता है, नेसेरिया गोनोरिया, सेफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है, क्लमाइडिया, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस से जेनाइटल वॉर्ड्स, ट्राइकोमोना से ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एंड जो मोस्ट डिस्कस्ड है हमारा एचआईवी, जिससे एड्स होता है। इसमें एचआईवी इज द मोस्ट डेंजरस। सो ये इसमें से कुछ ऐसे हैं, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी विच कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग नीडल्स, surgical instruments from one infected person to another, transfusion of blood from mother to fetus. Even HIV can be transmitted from mother to fetus through placenta. And except for hepatitis B, genital herpes, and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. So early symptoms क्या होते हैं हमारे? Itching, fluid discharge, pain, swelling in the genital region, and infected females में तो ये they remain asymptomatic, मतलब asymptomatic मतलब कोई symptoms ही नहीं show होते हैं, so they remain undetected for long. And एक problem है हमारी society में कि early stages of infection जो होता है, less significant symptoms in the early stage of infection, and the social stigma that is attached to STI. तो एक सोशल स्टिग्मा होता है, तो पीपल जनरली, द इन्फेक्टेड पीपल जनरली टेंड टू हाइड दिस। सो इसलिए क्या होता है, इससे टाइम डिटेक्शन और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होता है इससे? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो पीआईडी भी बोलते हैं, फिर अबॉर्शन भी हो सकता है, स्टिल बर्थ भी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होते हैं, एंड इनफर्टिलिटी तक हो सकता है, एंड इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसे टाइमली प्रॉपर ट्रीटमेंट दें उसकी, एंड इसको टाइमली डिटेक्ट करें। सो इसको अवॉइड करने के लिए, एसटीआई को अवॉइड करने के लिए, वी शुड अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग क्वार्टिस, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट वी शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन। तो कुछ हमारे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होते हैं फॉर कपल्स हु आर नॉट एबल टू कंसीव और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे, उन कपल्स के लिए कुछ असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होता है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। तो पहला आता है हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और आईवीएफ। तो इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी, इन सिमिलर कंडीशंस एज दैट इन द बॉडी। तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड होता है, तो उसके बाद क्या स्टेप होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटी। इन दिस मेथड, it is also known as the test tube baby program. Ova from the wife or donor female and sperms from the husband or donor collected and induced to form zygote under stimulated conditions in the laboratory. तो zygote जब 8 ब्लास्टोमिया स्टेज पे पहुंचता है, then it is transferred into the fallopian tube. इसे हम बोलते हैं ZIFT, zygote intrafallopian transfer. And embryos with more than 8 blastomeres into the uterus, that is IUT, intrauterine transfer, to complete its further development. And embryos formed by in vivo fertilization, fusion of gametes within the female. In vivo मतलब जो अंदर हो रहा है, fusion of gametes within the female also could be used for such transfer to assist those females who cannot conceive. मतलब फीमेल में गैमेट रिलीज में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम ये फ्यूजन करा सकते हैं इन वीवो, एंड देन वी कैन ट्रांसफर इट टू फीमेल्स जो यूट्रस प्रोवाइड कर सकती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। सो ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फेलोपियन ट्यूब, जो जिसमें गैमीट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, दैट इज नोन एज गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो ये अनदर फीमेल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। वो होता है हमारा गिफ्ट। तो ICSI क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum.
तो इनफर्टिलिटी केसेस जो होते हैं हमारा इधर ड्यू टू दी मेल पार्टनर जिसमें इजैकुलेशन में लो स्पर्म काउंट हो, तो दैट कैन बी करेक्टेड थ्रू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो उसका एक टेक्निक होता है जिसमें द सीमेन इज इधर कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर, एंड उसे हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं टू द वजाइना और द यूट्रस विच इज कॉल्ड IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। तो ये था हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर। तो ये जो हमारे टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिफ्ट, गिफ्ट, उसका फुल फॉर्म, IUAI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो प्रॉपर क्या उस टर्म्स के मीनिंग होते हैं, क्या डेफिनेशन है, STI के क्या सिम्टम्स होते हैं, नेम ऑफ सम STIs, फिर ऑल द मेथड्स ऑफ टू प्रिवेंट कंसेप्शन, नेचुरल बैरियर जो हमने पढ़े थे सारे, उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स है, एंड हाउ डू द कॉन्डम फंक्शन, हाउ डज अ कॉन्डम फंक्शन, हाउ डू द पिल्स फंक्शन, पिल्स के नाम, उनका क्या, कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।